Sometimes I wonder what kind of love I have as a person for another person, as artist for art, I do for people, for woofu, for plants, for everything that I'm surrounded by. What kind of intensity is this for life itself? What do I seek? What does loving oneself or knowing oneself holds? So many times I feel I don't actually know who I am. The only passion that I felt was to feel what I liked and what I liked to do. When I look back to my childhood, I see a lovely child wandering to find wonder. I was mostly on my own. My mother, who was my greatest source of validation, disapproved of who I was as a child. I remember of being punished even after being hurt by something. It would be such a safe space and a feeling of great relief if my mother would just hug me when I would be crying instead of shouting or beating me up. This sense of great attachment, along with the dreadful fear of losing her approval was at the core of shaping my sense of being. अच्छा, जो आपने बोला अभी, इसके बारे में कुछ बताओ मेरे को। क्या मतलब क्या है ये? So, basically, I I always felt that as a child was uh, I was this curious kid who wanted to, you know, I mean, like every other child who wants to explore, who wants to, just go out there, make a mess of things. Everything has to be tried by oneself, like by one's hand, and करना है, करके देखना है, जाना है. Uh, पेड़ चढ़ना है, गिरना है तो गिरना है. So the whole risk factor was not considered only. But you are just like you are into that beauty of journey. And that journey can bring anything. बहुत चोट लगती थी, बहुत गिरते थे, बहुत फोड़े हो रहे हैं, बहुत सब कुछ हो रहा है, बहुत आम खा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, इतना आम खा लिया कि पेट खराब हो गया. मतलब यू आर in that, you want to experience everything. But at the same time, when with my mother, that relationship was that she would maybe look at me in terms of uh, trying to manage my energy, and she would not be able to, when she would not be able to do that, she would um, give me threats of leaving. And she would say that I will go, if you do this I will go. And that was the greatest fear I had in my heart. मतलब इतना ज़्यादा कि एक पॉइंट पे when I had done something and she was scolding me and she beated me or something, and I was like कि, and she was constantly also telling me कि तुम सो गई. एंड आई वॉज लाइक अ किड ओनली. मतलब नींद आ रही है, शाम होते ही जिस बच्चों को नींद आने लगती है, थक गए हैं पूरे दिन बदमाशियाँ कर करके, तो नींद आ रही है, एंड शी इज़ टेलिंग मी अगर तुम सो गई तो मैं चली जाऊँगी. एंड मुझे उसका इतना खौफ था, इतना डर था कि मैं सोने सो आँख लग रही है एंड आई एम लाइक गेटिंग अप बार बार, एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड हर वेयर शी इज़. एंड सडनली आई स्लेप्ट. I fell asleep and oops. Oops, क्या करना है? साइलेंट कर दो। Oh, okay. And
Yeah, she I fell asleep and she went out and she closed the door and she actually walked out, not leaving me or anything, but I didn't know at that point. और मुझे एकदम से जब मेरी आँख खुली है तो मैंने देखा कि मम्मी घर पे नहीं है। और मेरा मतलब एकदम वो खौफ जो था वो सच में बदल गया कि मम्मी चली गई छोड़ के। और मैं भागी और मैं दरवाज़ा खोला मैंने और मैं मतलब देख रही हूँ, ढूँढ रही हूँ उनको पागलों की तरह कि मतलब शी लेफ्ट मी एंड आई एम रनिंग अराउंड एंड आई एम लाइक वो उस दिन का जो वो एक साइकोसिस जो था वो आज तक मुझे लगता है कि शायद वो मुझे इतनी विविडली याद है, इतना क्लियरली याद है कि मतलब मैं अपने आत्मा तक मतलब डर चुकी थी कि माँ चली गई। और and then she was hiding somewhere and she suddenly comes out and she's like laughing and all that and she's like मैं नहीं जा रही हूँ और वो but उतने ही देर में मुझे मतलब वो क्या फीलिंग हुई वो मैं किसी को ट्रांसलेट करके बता भी नहीं सकती। और इसलिए शायद मुझे किसी भी बच्चे को ऐसे कोई थ्रेट करना या ऐसे कुछ बोलते सुनना मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है, क्योंकि you don't know what goes on there in their mind and what you say, what they feel, it can just become something that they will carry forever. So वो बहुत ही डरावना था कि उनका ऐसे मुझे एकदम से जिस भी तरीके से वो एक पनिश करके ठीक करना, बट देन मैं पता नहीं कितना ठीक हुई या फिर मैं इतना ठीक हो गई कि लेटर इन माई लाइफ व्हेन आई वाज फेसिंग everything in my marriage situation, um, I always gave up and I was very, very, I was trying to accommodate everything and I was trying to live through that tough life and everything because वो एक एलिमेंट था कि वो छोड़ के चले जाएंगे लोग या मुझे छोड़ देंगे, या मैंने बहुत बदमाशी की तो मुझे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम मेरी वो मैडनेस भी है, मुझे वो सब करना भी है जो मुझे मैं बनाती है। तो यू नो दैट होल स्ट्रगल it started from there, but I carried it in some form or the other. It लोगों को प्लीज़ करना या लोगों को के लिए मतलब लगे रहना, अपने आप को वो सर्विसेज प्रोवाइड करना, वो सब कुछ करते हुए भी, बट eventually I realized nothing works. It's like, you can do whatever it takes and still people can leave and all that. So मतलब पता नहीं, बचपन में एक छोटी सी चीज़ बहुत इम्पैक्ट कर सकती है हमारे ऊपर। साइलेंट नहीं करा आपने, उठा के जाओ, उसको निकाल के दो मेरे को। अरे क्यों निकाल रहे हो उसको? अच्छा 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 खत्म करेंगे, दिस पार्ट ऑफ द वो। उसका चार्जर निकाल दो, चार्जर निकाल दो। भाई पिताजी का कॉल है आपके, बतिया लीजिए। बैठिए। हाँ, खत्म कीजिए बात। बात ख़त्म कहाँ होती है, मतलब बस यही है कि आई थिंक इट्स दैट। सो व्हाट आई रोट वाज एक्चुअली और लिखना था, बट मतलब दैट वैलिडेशन जो था वो एक वैलिडेशन उनसे आता था मुझे, जब वो मुझे किसी किसी तरीके का कोई बदमाशी करने पे भी, मार पीटने के बाद भी अगर इफ़ शी वुड कम एंड वो मुझे प्यार कर देंगी तो मुझे लगता था कि हाँ मतलब सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो वो भी था कि ये भी चीज़ मैंने बाद के अपने लाइफ में देखा कि अ, बहुत सारा हमारा कुछ हो जाएगा, कुछ बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो चुकी हूँ, किसी कोई बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, ही कैन डू एनीथिंग दैट वुड हैव हर्ट मी बैडली, but when he would do a small thing like he'll just go and make some chai and give me a cigarette, I will feel that everything is good, like वो चीज़ ठीक हो गई, वो सब कुछ ठीक हो गया। तो वो इतना छोटा सा जेस्चर भी मुझे ईयर्स तक चलाता रहा एक्चुअली। वो ऐसा नहीं है, वो छोटी सी जेस्चर वो कुछ भी कर देगा ना मेरे लिए छोटा सा, आफ्टर डूइंग सम काइंड ऑफ अ बिग सम काइंड ऑफ अ शिट, आई विल स्टिल बी लाइक कि हाँ मतलब सब ठीक है, एंड मतलब
तो मेरे लिए वो वैलिडेशन का बहुत बड़ा वो मतलब बन गया कि वो वैलिडेशन चलता ही रहा लाइफ में। और शायद वो मैंने बहुत लेटर रियलाइज़ किया कि वो इट बेसिकली इट किल्स यू फ्रॉम इनसाइड, आपको बहुत मारता है। और सो ये है, शायद उसी से रिलेटेड मैं कुछ लिख रही थी एंड आई डोंट नो क्या है यार। अरे वो पकड़ो पकड़ो पकड़ो